معاشرے کی اصلاح جو ہے اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ فرد کی اصلاح ہے تو افراد سے معاشرہ ایک فرد بنا 2 بنے 3 بنے 4 بنے 5 بنے 6 بنے 10 بنے 20 بنے 50 بنے 100 بنے ایک مرد بنا ایک عورت بنی ایک گھر بنا اب دھیرے دھیرے وہ معاشرہ درستگی پر آ جائے گا وہ دھیرے درست جو حضور علیہ السلام کی ترتیب رہی کہ آپ نے اپنے آپ کو بنایا اپنے گھر آ کر اپنی بیوی کو بنایا اور اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور پھر دھیرے محنت کا دروازہ کھول انتظار نہیں کیا کہ خاندان والے بن جائیں گے پھر دوسروں پر محنت کریں گے اور گاؤں والے بن جائیں گے پھر تیسروں پر محنت کریں گے اپنی محنت کی ترتیب ہو رہی کہ اپنی ذات سے شروعات کی اپنی بیوی پر محنت کی اپنے خاندان پر محنت کی مکے کے بقیہ قبائل پر محنت کی پھر مکے کے باہر اپنے کام کا سلسلہ شروع کیا تو اس میں انتظار نہیں کیا کہ مکے والوں کو سب کو ہدایت مل جائے پھر بعد میں باہر جائیں گے لیکن اپنی ترتیب جو حضور نے قائم کی وہ یہ ترتیب ہے اور اسی ترتیب پر کام کیا زندگی پر اور ایک اچھا پاکیزہ معاشرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا اللہ نے ہمیں اس کا موقع دیا ہے وہ علم ہمیں دیا ہے جس علم کے ذریعے سے حضور علیہ السلام اور صحابہ نے اتنا بڑا ایک نظام دنیا میں قائم کیا آج بھی اس علم میں وہی طاقت ہے بس یہ ہے کہ اس کو اس طاقت سے پیش کرنے کی ضرورت ہے امت کے سامنے لوگوں کے سامنے قوموں کے سامنے قبائل کے سامنے طبقات کے سامنے ابھی طبقات کے پاس اسلام کا طریقہ نہیں اس لیے بہت سارے مسلمان ہیں وہ اور طریقوں سے اتنے متاثر ہیں کہ وہ اسلام کے طریقے کو سننے بھی راضی نہیں کیونکہ سمجھ اس میں کیا ہے اس میں کوئی ترقی کا راستہ تو ہے نہیں بس نماز روزے کی بات اس میں اور تو کوئی چیز ہے نہیں لیکن چونکہ پیش کرنے کی ہماری کمی آج بھی دنیا میں جب اس کو اچھے انداز میں اچھے طریقے سے سلیقے سے پیش کیا جا رہا ہے اور عملی طور پر بتایا جا رہا ہے تو دنیا کی قومیں اسے تسلیم کر رہی ہیں قبول کر رہی ہیں کہ نہیں صحیح راستہ یہ ہے صحیح طریقہ یہی ہے اس کے علاوہ دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا اس لیے ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنی بساط و ہمت کے مطابق اس زندگی کو ہم کوشش کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی جو مبارک زندگی ہے اس زندگی کا اتباع کرنے کی ہم اپنی ذات سے کوشش کرتے سفر شروع کریں گے تو اللہ تعالی ہماری اس میں مدد کرے گا بنیاد آدمی کا فیصلہ ہے کہ آدمی فیصلہ کرے جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت بڑا کروڑپتی آدمی ہے ڈائٹنگ کا فیصلہ کر لیا اس ڈائٹنگ کا روزانہ اس کے دسترخوان پر کاجو بادام پستے بریانی سب ہے لیکن وہ کسی جگہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا لوگ کہتے ہیں گائے سب نہیں آپ اس کے دسترخوان پر لوگ کھا لیکن وہ نہیں کھا رہا اس نے کسی وجہ سے اپنے کپڑوں کی ایک قسم پسند کر لی کہ میں اس قسم کے کپڑے پہنوں اب اس کے پرچے اس سے مہنگے لاتے اس نے کسی کمپنی کا ایک جوتا پسند کر لیا وہی پہنتا ہے وہ 1000 روپے کا آتا ہے 500 روپے کا آتا ہے لیکن وہ زندگی بھر وہی ایک جوتوں میں زندگی گزار دیتا ہے ایک ہی قسم کا جوتا پہنتا اس کے بچے ہر مہینے بدل کر لاتے لیکن نہ اس کو اس کا شوق ہوتا ہے نہ اس کی طرف دیکھتا ہے کیونکہ اس نے ایک بات کا فیصلہ کیا ہے کہ مجھے یہ زندگی اختیار کرنی ایسے اگر ہمارا فیصلہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اختیار کرنی ہے تو پھر اس فیصلے کے بعد کوئی مشکل چیز نہیں آج بھی اس زمانے میں دنیا میں ایسے ہزاروں علماء ہیں اور ہزاروں اس قسم کے لوگ ہیں کہ جو ایک بات کا فیصلہ کر چکے کہ ہمیں یہ زندگی گزارنی مالدار بننے کی کوشش نہیں کرنی زمیندار بننے کی کوشش نہیں کرنی جاگیردار بننے کی کوشش نہیں کرنی اس علم کی خدمت کرنی تو انہوں نے باوجود اپنی صلاحیتوں کے کہ وہ زمیندار بن سکتے ہیں جاگیردار بننے کی کوشش کرے دکاندار بننے کی کوشش کرے تو کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو سیو کیا ہوا ہے اللہ کے کام کے لیے کہ ہم اس صلاحیت کو لوگوں پر لگائیں گے اور ہم اس مال کو لوگوں پر لگائیں گے تاکہ لوگ اللہ کا دین سیکھیں اور لوگوں میں دین کی طلب پیدا ہو
अपने इन औकात को जो बहुत कीमती है, एक आम आदमी का वक्त है वो कीमती है, तो क्या आलिम का वक्त बेकीमत होगा? उसका वक्त और ज्यादा कीमती, लेकिन इस कीमती वक्त को और ज्यादा कीमती बनाकर उसको अल्लाह के दीन के फरोग के लिए लगाएंगे, अल्लाह के कुरान की इशाअत में लगाएंगे। इसमें जो वक्त हमारा लग रहा है यही तो असल कीमती हो रहा है, उसी में तो असल कीमती हो रहा है कि वहां तो वक्त लगकर आदमी पैसे, डॉलर और रियाल गिनता है, यहाँ आदमी जब इसका बदला, हदीस में है कि एक कुरान की आयत किसी को सिखा दी, पूरी जमीन भरकर सोना अगर दे दिया जाए तो उसका बदला नहीं हो सकता। उसका बदला, एक आयत का बदला, एक आयत का बदला नहीं हो सकता। इतनी कीमती चीज है, उसके एक हरफ का कोई बदला नहीं दे सकता। ये उसकी कीमत है जो हमको अजर की शक्ल में मिलने वाली है, वो अजर की शक्ल में मिलने वाली। ये हमारी प्रॉपर्टी है। दुनियादार दुनिया कमा कर जायदाद जमा करके चले जाएंगे, लेकिन हमने जो दीन की खिदमत की है, कुरान की खिदमत की है, इल्म की खिदमत की है, लोगों तक दीन पहुंचाया है, ये हमारा सेव हो रहा है, अल्लाह की बैंक में जमा हो रहा है। और उसका बदला जब मिलेगा आदमी को क़यामत के दिन, तो आदमी तमन्ना करेगा कि काश के मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दे और इसके अलावा दूसरा कुछ न कर। इस पर अजर है, उस अजर का मुहासबा होगा तो कुरान पढ़ाने में मजा आएगा, मकतब पढ़ाने में मजा आएगा, शौक से आदमी पढ़ाएगा, शौक से पढ़ाएगा। फिर इमामत करने का मजा आएगा, उस पर अजर का पता है। बोझ से नहीं, आदमी आने वाले हालात को झेल लेगा, मस्जिद नहीं छोड़ेगा। आने वाले हालात को आदमी झेल लेगा, वो देहात नहीं छोड़ेगा, वो गांव नहीं छोड़ेगा कि नहीं भाई ठीक है, दो चार आदमी होते हर जगह। ये सियासी लोगों को सियासत करना आसान है भाई। वजीर आजम कुर्सी पर बैठा हुआ है तो क्या उसको लोग दुआएं देते हैं? अरे भाई दुआएं दे रहे हैं, और जितने मिनिस्टर लोग बैठे हुए उनको लोग दुआएं दे रहे हैं, सबकी गालियां खाकर फिर भी उसी की रगबत है, अगले टर्म्स में फिर आने की कोशिश है, हम आ जाओ, हमारे अलावा दूसरा कोई ना आए, उसी की कोशिश में, छोड़ने को तैयार नहीं, चाहे कितने लोग गालियां दें और कितना लोग बुरा भला कहें। बल्कि आएंगे जब वक्त आएगा लेने का तो सब दामन फैलाएंगे, भाई जितनी गाड़ो आप भी दो, आते हैं वो दामन फैला, वो कुर्ते पहन के आते उस वक्त तो सब, और फिर दामन फैलाते कि भाई जैसे जितनी गाड़ो आप भी तो पर मौत हमने आती। तो जब वो इसके लिए गालियां खा रहे हैं और इसके लिए मशक्कतें बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हमारी जो निस्बत है वो तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत। हुजूर ने इस रास्ते में गालियां खाई है, हुजूर ने इस रास्ते में लोगों के कड़वी कसीली को बर्दाश्त किया है। लोगों ने आपको घूरा, आपने इसको बर्दाश्त कर लिया। किसी ने आपको साहिर कहा, कोई जवाब नहीं दिया, अल्लाह ने जवाब दिया। लोगों ने आपको काहिन कहा तो आपने उनको कोई जवाब नहीं, अपनी सफाई बेचने के भाई मैं जादूगर नहीं हूं, अल्लाह ने जवाब दिया। लोगों ने आपको पता नहीं कैसे कैसे आप पर इल्जाम लगाए, कैसे कैसे इल्जाम लगाए कि इसने हमारे दरमियान में तफरका पैदा कर दिया, भाई भाई को जुदा कर दिया, और माँ बाप को औलाद से अलग कर दिया, और इसने हमारे माँ बाबा व अजदाद के माबूदों को बुरा भला कहा, और इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनका कोई जवाब भी नहीं दिया और इनसे मुतासिर भी नहीं हुए और अपनी जवाबदारी भी नहीं छोड़ी। एक मौके पर तो हुजूर ने कहा अगर तुम मेरे एक हाथ में चांद और एक हाथ में सूरज लाकर रख दो ना, यानी तुम इतना ज्यादा कोई बड़ी करामत दिखा दो, तब भी मैं तो वही बात करूंगा जो मैं लेकर आया हूं, वही बात करूंगा। एक मौके पर आए कि हम आपको शादी करवा दें किसी अरब की हसीना से, और आप चाहे तो आपको बादशाह बना दें, और आप कहते बोले मैं इसके लिए मबूस नहीं किया गया, मैं तो मुबल्लिग और मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, ये मेरे मकासद नहीं मेरी बैसत कि तुम मुझे बादशाह बना दो। एक मौके पर आए जब अबू तालिब का इंतकाल का वक्त करीब था, तो सारे चौधरी जमा हुए अबू तालिब के पास और उनसे बात की कि देखो अब आपकी बीमारी है और उम्मीद कम है कि आप ज्यादा जिंदा रहो, आपको पता है आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कौम के दरमियान में जो हादसा चल रहा है, आप मरते मरते खैर का काम करते जाओ और कौम के दरमियान में सुलह करवा दो। तो बहुत अच्छी बात,
आदमी भेजा हुजूर अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए, आप तशरीफ लाए। रिवायत में लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब आए तो अबू तालिब के पास एक जगह खाली थी बैठने की और बाकी कमरा भरा हुआ था। अबू जहल ने देखा कि वो जगह खाली, अगर वो वहां चले गए तो कान में ऐसी बात कहेंगे कि वो उसी की सुनेंगे। तो अबू जहल ने क्या कि वहां से कूद कर आकर यहाँ बैठ गए। जब हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर अलैहिस्सलाम दरवाजे पर खड़े रहे, फिर वही बैठ गए और पूछा चचा जान क्या था, क्यों बुलाया? तो उन्होंने कहा कि बेटा ये सब कौम के जिम्मेदार लोग आए हैं और ये चाहते हैं कि आपकी उनके दरमियान में सुलह हो जाए। तो हुजूर ने कहा कि आज तो मैं एक ऐसी बात लेकर आया हूँ कि अगर आप लोग तस्लीम कर लोगे तो पूरा अरब तुम्हारे ताबे हो जाएगा और पूरा अजम तुमको जिजिया देगा। पूरा अरब तुम्हारे ताबे होगा और पूरा आजम जो है वो तुम्हें जिजिया देगा। तो वो तो सारे चौधरा चाहते ही थे, वो तो यही चाहते थे कि हम बड़े रहे, हम पर कोई ना हो, हम ही बड़े रहे, हमारी चले। तो वो तो बहुत खुश हो गए। तो अबू जहल नहीं बोला कि भतीजे ऐसी तेरी एक नहीं 10 बातें मंजूर। अगर ये मिलता हो कि पूरा अरब ताबे हो जाए और पूरा आजम जिजिया दे रहे तो ऐसी तेरी एक बात नहीं बल्कि 10 बातें मंजूर है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। तो सब दामन झाड़ते हुए चले गए। भाई ये तो वही बात करता है, आप अपनी बात से हटे नहीं, पूरी इस्तिकामत के साथ। इसलिए कि हक जो है ना, हक वो इस्तिकामत चाहता है, उसके बगैर वो फैलता नहीं। जितने उलमा ने जिन जिन इलाकों में काम किए उनकी कई कई सालों की मेहनत के बाद कुछ नतीजे निकले। कोई बदल थोड़ा है दबा दिया हक फैल गया, उसके लिए मशक्कत है। अगर हम उस मशक्कत और मुजाहदे के आदी है तो फिर दीन का काम बहुत आसान है, दीनी खिदमत बहुत आसान। और अगर वो मशक्कत और मुजाहदे की आदत हमसे निकल गई, जो दुनिया के और ममालिक में हो गया, अहले इल्म को मशक्कत का जो आदत थी पहले, उनको ऐसी दरसगाहों में तालीम दी गई कि जहां मशक्कत नहीं है, निजाम तालीम को उस तरतीब पर ले जाया गया कि उनके अंदर से मशक्कत निकाल दी गई, उनके अंदर से मशक्कत निकाल दी गई। तो इल्म के लोग अल्फाज रहे ऐसे फसीह और बली खुतबे देने वाले, ऐसे फसीह और बली खुतबे देने वाले, लेकिन अमल का जब नाम आए तो सिफर है। हाँ, आलम अरब का जो हाल हुआ है सब जानते हैं कि वो तो एक जमाना था कि उनके पास तो ऐसी मशक्कतों में उन्होंने इल्म लिया था कि लंबे लंबे सफर किए थे। अबू जाफर मंसूर है ना, अबू जाफर मंसूर, वो जब बादशाह बन गया, बड़े आलिम थे वो, लेकिन जब बादशाह बन गए तो उनको एक दिन बहुत अफसोस कर रहे थे, बहुत अफसोस कर रहे थे। तो दरबारी आए, करीब हुए कि अमीरुल मोमिनीन आज आपको हम बहुत ज्यादा परेशान देख रहे, क्या वजह है? तो कहा कि मैंने बड़ी मशक्कत से इल्म लिया था, बड़ी मेहनत से इल्म हासिल किया, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मुझसे कोई इल्म लेने वाला नहीं। तो जब चापलूस होते हैं हम मतन दरबारी, तो सब अपने आकाओं की चापलूसी करते हैं हमेशा। तो वो आएगा अमीरुल मोमिनीन, हम आपसे सीखेंगे, कागज कलम लेकर हाजिर हो गए सब, हदीसना या अमीरुल मोमिनीन, हम आपसे सीखेंगे। तो अमीरुल मोमिनीन अबू जाफर मंसूर ने कहा कि तुम इस इल्म के अहल नहीं हो, ऐसा थोड़ा कि तुम आया नहीं, मैं तुमको लिखवा दूंगा तुमको इल्म मिल जाएगा। अबू जाफर मंसूर ने कहा कि इल्म के अहल वो लोग हैं जो कभी हिजाज में होते हैं, कभी यमन में होते हैं, कभी कूफा में होते हैं, कभी बसरा में होते हैं, जो गुबार आलूद कपड़ों वाले, बिखरे हुए बालों वाले होते हैं। तुम थोड़ी इसके अहल हो कि यहाँ दरबार में बैठे बैठे तुमको इल्म मिल जाएगा। ऐसी मशक्कतों से उन्होंने इल्म लिया था, इस इल्म को पहुंचाया था। लेकिन जब वहां पर इस्लामी निजाम कायम हुए सब जगह और बड़ी बड़ी रियासतें बनी और अंदर उनके अंदर से मुजाहदे की सिफत निकल गई, मुजाहदे की सिफत। जब मुजाहदे की सिफत निकलती है तो धीरे धीरे ऐश और इशरत की सिफत दाखिल होती है। ये उसकी जिद है, दोनों जिद। जहां मुजाहदा होगा ऐश और इशरत वहां नहीं पनप सकती, जैसे जहां उजाला है अंधेरा वहां पनप नहीं सकता है। एक उजाला है, वहां कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप अंधेरा कर सकते, वहां आप अंधेरा नहीं कर सकते। ऐसे जहां मुजाहदा है वहां ऐश और इशरत नहीं हो सकती, जहां मुजाहदा है वहां रुखसतें दाखिल नहीं होगी, और जब रुखसतें नहीं आएगी तो शुबहात में आदमी नहीं जा सकेगा, और जब शुबहात में नहीं है तो हराम का तो मसला ही नहीं, जब शुबहात नहीं है तो हराम का मसला ही नहीं।
जिस पर हमारे बुजुर्गों ने अपनी बुनियादें रखी थी, जिस पर बुजुर्गों ने बुनियादें रखी और उसी पर इदारे चलाए और उसी में अफराद तैयार हुए। ऐसी चीज नहीं है, अफराद तैयार हुए, थोड़े तैयार हुए, लेकिन वो थोड़े ऐसे मजबूत तैयार हुए कि जो पूरी दुनिया में आज जितने सारे दीनी सिलसिले फैले हुए हैं वो उन्हीं पर जाकर लौटते हैं पूरी दुनिया में। अरब, अजम, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, फीजी, उधर ट्रिनिडाद तक जितने मदारिस के, मकातिब के, खानकाहों के, दावत के जो सिलसिले और जो शोबे हैं वो सब जाकर लौट कर यहाँ आते हैं। जो अनार के दरख्त के नीचे शुरू हुआ, जिनके पास तनख्वाह के पैसे नहीं होते थे, जिनके पास 2 जोड़ी अच्छे कपड़े नहीं होते थे जिसको पहनकर बाहर आ जाए, फक्र फाका में जिन्होंने अपना निजाम चलाया, बस वही मिसाल कायम की जो कर्न अव्वल में हुजूर अलैहिस्सलाम और सहाबा ने। हमारे लिए यही रास्ता है, यही रास्ता है। उस रास्ते पर अगर है तो फिर दीनी खिदमत आसान है। और अगर जोहद निकली है, सिफत जोहद, तो फिर इमामत मुश्किल हो जाएगा। अब फजर आदमी थोड़े से तनख्वाह कहीं और से दूसरी शुरू हो गई या आमदनी और शुरू हो गई, आदमी धीरे से माजरत कर देता है कि भाई फजर का दूसरा इमाम तलाश कर लो, दूसरा और कर लो ताकि फजर इशा वो पढ़ा ले, जोहर असर में पढ़ा ले, सिफत जोहद खत्म हो जाएगी। फिर आदमी मदरसे में रुखसत, एक तो यह है कि आदमी ने कोई और वजह से किया, तालीम कम करें और कुछ और करे, दीनी मसरूफियतों की वजह से आदमी ने किसी के मशवरे से किया है, वो तो ठीक है, आदमी अपने नफ्स के शर से बच जाएगा। वरना जरा आमदनी का कोई रास्ता और खुल गया तो फिर यहाँ ये मसरूफियत जो है उसमें आदमी कमी कर देगा। भाई अब मैं सुबह एक वक्त आ जाऊंगा, शाम का आप मुदरिस और कर लें। और अगर सिफत जोहद आदमी में है तो आदमी कोशिश कर, नहीं अल्लाह ने मुझे पहले तौफीक दी थी, कम आमदनी में भी मैं इतना काम करता था, अब आमदनी मेरी बड़ी है लेकिन फिर भी पढ़ाऊंगा। बल्कि कोशिश ये करेगा जो हमारे असलाफ का तरीका रहा कि पहले आमदनी नहीं थी तो तनख्वाह ले लेते थे, अब अल्लाह ने कोई रास्ता खोल दिया तो तनख्वाह बंद कर दी, लेकिन पढ़ाना बाकी रहे। बल्कि उससे ऊपर यह किया हमारे बुजुर्गों ने कि जो पीछे तनख्वाह ली थी वो वापस कर दो, कि भाई हमारे पास और कोई जरिया आमदनी का अच्छा हलाल हो रहा है तो अब हम हमारे पास एक इंतजाम है, तो अब हमें जरूरत नहीं है, हम हमारे जो तनख्वाह पहले ली है थोड़ी थोड़ी करके वो भी वापस। ये वो रास्ता है, तकवे का रास्ता है, जो अल्लाह से लेने का रास्ता है। ये हमारा इल्म इसका है, जो सबसे मेडिकल के इल्म से ज्यादा बड़ा इल्म ये। मेडिकल में आज तक कोई ऐसा इल्म नहीं आया कि बिल्किस का तख्त उठाकर वहां से वहां ले जाए, लेकिन इल्म वालों के पास ये चीज ऐसे इल्म वाले हर जमाने में मौजूद रहे और आज भी ऐसे अल्लाह के बंदे दुनिया में मौजूद हैं जो ऐसी ताकत रखते हैं। तकवीनी निजाम में तसर्रुफ की ताकत अल्लाह उनको देता है, उसका जरिया यही इल्म है, ये इतनी बड़ी ताकत है। लेकिन यह है कि आदमी मामला सही करके उस रुख का सफर शुरू करे। अल्लाह ने हमें इसका मौका दिया है और ये बहुत बड़ा मैदान काम का दिया है। और अभी जिन हालात से हम और पूरी उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया में तमाम शोबों के एतबार से, चाहे सियासी शोबे हों, तिजारती शोबे हों, और उम्मत के अवाम, खवास, जवान, मर्द, औरतें जिन हालात से गुजर रहे हैं उन हालात के तबसरों से कोई फायदा नहीं है। बल्कि हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बात फरमाते थे कि अमराज उम्मत को बयान मत करो। अमराज उम्मत हमारे बयानात में अमराज उम्मत इसलिए कि वो बीमारियां 5% या 10% लोगों में है, मोहल्ले में 15% लोगों में है, लेकिन हम बयान करेंगे तो 85% लोगों को जिनको पता नहीं है वो बीमारियों में मुब्तला होंगे। और वो है जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मशहूर मक़ूला है, जो उमर का अमीतुल बातिल बितर्क ज़िक्री, उसके मुकाबले में हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने आवाम के राब्ते में रहें। सबसे पहली चीज है, अंबिया अलैहिस्सलाम अपने कौमों के पास गए, कौमें उनके पास नहीं आई क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनके पास कितना बड़ा सरमाया। वह इला मदयन अख़ाहुम शुअयबा इला मदयन इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, कि नूह अलैहिस्सलाम को कौम के पास भेजा और शुअयब अपने कौम के पास मदयन अलैहिस्सलाम गए। ऐसे ही अंबिया का यही तरीका रहा कि अपनी आवाम के पास